Hello, good afternoon, everybody. I welcome all of you. Dear ones, come online. We are going to start today's online class. As many students have joined, we have started a topic preposition. Meaning of the preposition and types of preposition. And some important preposition are used or discussed in previous class. Today we shall discuss some other important preposition and their use. As we have earlier discussed, meaning of the preposition. Preposition is a word used with a noun or pronoun to show its relation with some other part of the sentence. preposition वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ यूज होता है, उस संज्ञा या सर्वनाम का उस सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट से रिलेशन शो करने के लिए उसे हम preposition नेम से जानते हैं। हमने पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट prepositions का यूज भी डिस्कस किया था। टुडे वी शैल डिस्कस सम मोर important prepositions. For example, first of all, difference in the use of beside and besides. Beside and besides. Sometimes we use the word beside and besides, but difference between the meaning of beside and besides. Beside mean by side of, beside, and besides mean in addition to. beside के अतिरिक्त, इसके अलावा, और बाई साइड ऑफ, बिसाइड यदि है तो उसका मतलब है बगल में। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दीज टू सेंटेंसेस एंड you will fill in these sentences correct preposition. For example, if I say my sister said, and second one, books I purchased some notebooks. Look at these two sentences and fill correct preposition as Vikas Parikh has replied. In first sentence, very good afternoon. In first sentence, beside, and in second sentence, besides. Correct? In second, besides. Books के अलावा, books के अतिरिक्त, I purchased some notebooks. मैंने कुछ notebooks भी purchase की। इस सेंस को शो करने के लिए, के अतिरिक्त का मीनिंग देने के लिए we shall use besides. And beside means by side of. My sister sat beside me, by side of me. So we will use the word beside. Now look at very important preposition to show time. In, on, and at. To show time, we use these three general preposition to show time relation, to show the time. If we want to show fixed time, we use at. And if we want to show time of a day, for example, on my birthday, on Independence Day, on Republic Day, we use on. And in is used to show
period of time, time of period, it will in a week, in a month, time more than of a day, एक दिन से ज्यादा समय की अवधि के लिए मोस्टली वी यूज द वर्ड इन। लेकिन सम टाइम ये जो फिक्स फ्रेजेस है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, बट एट मिडनाइट, एट dawn, एट डस्क, एट डे ब्रेक, इसके लिए हम फिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डे ब्रेक एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पे होता है, उसमें हम पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोल सकते, एक फिक्स पॉइंट पे डे ब्रेक होता है। तो डे ब्रेक, dawn, dusk, at sunrise, sunset, these are fixed time, so we use at. And if we want to show a wide time, एक बड़ा समय दिखाना चाहते हैं, at that time we use in the morning, in the evening. Morning covers time of more than 2 or 3 hours, 2-3 घंटे का टाइम कवर करती है इन द इवनिंग। और इससे भी ज्यादा मैं इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता कि व्हाई डू वी यूज इन विद मॉर्निंग एंड इवनिंग। हम कल्चरली कह सकते हैं preposition टॉपिक इज related to culture of any language, and culturally we use in with morning and evening. Look at these sentences and try to fill correct preposition in these sentence. For example, I arrived 4 o'clock. She gave me a gift Independence Day, and I shall complete this work year. इन फर्स्ट सेंटेंस रेस्पॉन्सेस आ चुके हैं। विकास पारिक ने आंसर दिए हैं। फर्स्ट में एट, सेकंड में ऑन एंड थर्ड में इन। कनीज फातिमा का भी आंसर आ चुका है। फर्स्ट में एट, ऑन एंड इन। वेरी करेक्ट आंसर्स। आई अराइव्ड हियर एट 4 o'clock. At 4 o'clock. 4 o'clock, as we have already discussed, O here shows informal form of OF. प्रोनाउंसिएशन अब रहता है इसका। तो ऐसे फिक्स टाइम को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का। इन द सेकेंड, शी गेव मी ए गिफ्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। इट मीन दिस वन इज द टाइम ऑफ अ डे। एक दिन की समय अवधि के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। आई शैल कंप्लीट दिस वर्क इन अ ईयर, एक साल में। तो यहां पे पूरे साल की जो अवधि है उसको शो करने के लिए हमने किसका यूज किया है? इन का यूज किया है। कुछ फिक्स फ्रेजेस में आपसे ऑलरेडी बोल चुका हूं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इनके लिए हम इन का यूज करते हैं। और जो फिक्स पॉइंट है एट मिडनाइट, एट डे ब्रेक, एट dawn, एट डस्क, एट नून, ये जो फिक्स फ्रेजेस हैं, एट नाइट, तो इसके लिए हम एट का यूज करते हैं। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सेकंड वन, इसमें एक चीज और आती है कि डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद इन। यदि इन और विद इन में डिफरेंस करना हो, समटाइम वी यूज इफ इन द थर्ड सेंटेंस I shall complete this work within a year. Within a year, तो within भी यहां हो सकता है। तो within और इनके मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या शो करता है?
In shows at, end of, and within shows before, end of. If we want to show the sense of end of a particular time, we use in. And if we want to show the sense or meaning of the before the end of time, then we should use within. It means, for example, if I say, we can use both preposition in the same sentence, but meaning will be different. I shall return it. I shall return it in a week. We may use in as well as within. I shall return it in a week and within a week. Both are correct, but meaning is different. If we use in shows, I shall return it at the end of a week. And if we are using within, it means I shall return it before the end of a week. एक वीक के एंड से पहले मैं इसको रिटर्न कर दूंगा. इट इज द मीनिंग ऑफ विदिन. ये विदिन का मीनिंग रहेगा, तो इसमें भी अपने ध्यान रखना है. समटाइम्स वी यूज दीज थ्री प्रेपोजिशन टू शो टाइम. कई बार हम इन प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं टाइम को शो करने के लिए, और कई बार हम इसका यूज करते हैं प्लेस को शो करने के लिए. तो हमने जैसा कि टाइम के लिए पर्टिकुलर इनका यूज पढ़ा, इसी सेंस के अंदर इफ वी यूज इन, एट एंड ऑन विद प्लेस, यदि हम स्थान के साथ इन प्रेपोजिशंस का यूज पढ़ते हैं या यूज करते हैं, तब इसका क्या यूज रहेगा, क्या डिफरेंस रहेगा. तो इसमें हमें ध्यान रखना है इन, एट एंड ऑन. तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा. शिमला भी ऑनलाइन जुड़ चुकी है, इनके भी आंसर आए हैं, करेक्ट हैं. इसमें सेकंड में आप इन का यूज कर रहे हैं, जबकि सेकंड के अंदर ऑन का रहेगा, थर्ड में इन का यूज रहेगा. थोड़ा ध्यान रखें, इसमें बिल्कुल बेसिक से यूज कर रहे हैं अपन प्रेपोजिशन के इन, एट एंड ऑन. इन द रेफरेंस ऑफ प्लेस, एक जगह के लिए इसका क्या यूज रहेगा. जो एट है, एट शोज फिक्स प्लेस, बिल्कुल फिक्स प्लेस. टू द पॉइंट यदि अपन बात करें, बिल्कुल छोटा एरिया शो करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एट. इफ वी वांट टू शो वाइड एरिया, कुछ बड़े एरिया की बात अपन करें, देन वी यूज इन. इन इज यूज टू शो अ वाइड एरिया, and at is used to show a fixed point in that wide area. किसी वाइड एरिया के अंदर एक फिक्स पॉइंट को शो करना है, वहां अपन यूज करेंगे एट का. और ऑन का यूज हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं, टू शो अपर कंडीशन, ऊपर की कंडीशन शो करने के लिए, विद अ टच विद दैट सरफेस, उस सरफेशियल टच को शो करने के लिए हम यूज करते हैं ऑन. आई पुट अ बुक ऑन a table. So on a table, it means surface of the book and table are touching, and book is on the upper side of a table. This one is shown is by the use of on. Look at the sentences and try to fill correct preposition. For example, I arrived airport, Delhi. Look at this sentence and fill correct prepositions. Very good. विकास पारिक के आंसर आ चुके हैं. In first sentence we will use at first fill in blank. एंड इन सेकंड शिमला के भी आंसर आ चुके हैं. वेरी गुड. कनीज फातिमा के भी आंसर हैं, बिल्कुल सही हैं आप सब लोग.
at, and in second fill in blank we will fill in. I arrive at airport in Delhi. Delhi is a wide area. To show a wide area, we will use in. And to show a fixed point in that area, we will use at. टाइम में भी यही था, जो फिक्स टाइम है, बिल्कुल टू द पॉइंट जिस टाइम या प्लेस की बात करें उसके लिए हम एट का ही यूज करते हैं, चाहे वाइड टाइम हो और चाहे वाइड एरिया ऑफ प्लेस हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं. एंड टू शो द अपर कंडीशन शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो प्रेपोजिशन में नेक्स्ट बाय, ऑन एंड इन. यूज ऑफ द बाय, ऑन एंड इन. यूज ऑफ द बाय, फॉर एग्जाम्पल कई बार हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए इनका यूज करते हैं, तो उसके टाइम हमें किस चीज का ध्यान रखना है, तो बाय, ऑन एंड इन, इसमें अपन यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट मीन्स. With the use of these preposition, we mention means of the transportation. At that time, हमें कुछ किस चीज का ध्यान रखना है, किस तरह से हमें इसका यूज करना है. By word is used to show public vehicles. If our journey is made with the help of public vehicle, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमने यूज किया है, एट द टाइम वी शैल यूज बाय. ऑन, ऑन जो वर्ड है वो शो करता है कोई भी स्पेसिफिक व्हीकल्स हैं जिनके लिए अपन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनके लिए अपन ऑन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन बस, ऑन बस के लिए अपन यूज करते हैं. इसके बाद इफ यू वांट टू refer a specific train, specific bus, at that time we use on bus, train, ship, plane. किसी शिप के अंदर हमारी जर्नी है, प्लेन के अंदर हमारी जर्नी है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं. इसके साथ साथ इफ वी वांट टू शो, यदि हम इसके साथ में शो करना चाहते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट, तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं जैसे कि किसी एनिमल की बैक, एनिमल्स बैक, मे बी ऑन हॉर्स, ऑन कैमल, दीज आर एनिमल्स बैक. समटाइम्स टू शो ऑन फुट, पैदल चलने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं. तो इनका आप ध्यान रखेंगे. पब्लिक व्हीकल, अब पब्लिक व्हीकल मींस यदि आप जस्ट इतना शो करना चाहते हो बाय बस, बाय बस, एंड इफ यू वांट टू रिफर अ स्पेसिफिक बस ऑन चंद्रा ट्रेवल्स बस, यदि कोई स्पेसिफिक आप व्हीकल को करोगे एट दैट टाइम यू विल यूज ऑन. और यदि आप सिंपली एक रिफर करना चाहते हो किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरह, तब अपन नॉट ए स्पेसिफिक बस, बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, तब हम इस चीज का यूज करेंगे. लेकिन यदि बस, ट्रेन, शिप, प्लेन, एनिमल्स बैक और फुट, इनके साथ कोई स्पेसिफिक व्हीकल इसको अपन शो करना चाहते हैं, एट दैट टाइम विल यूज ऑन. एंड इन इज यूज्ड विद सम प्राइवेट व्हीकल्स, जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कार, जीप, वैन, लॉरी, एम्बुलेंस, टू द शो द जर्नी with the help of a car, jeep, van,
लॉरी, एम्बुलेंस, वी यूज इन। इनके लिए हम इन का यूज करते हैं। इसमें आप एक टैक्सी का और ध्यान रखेंगे, टू शो जर्नी बाय अ टैक्सी विल यूज इन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट मीन्स। ट्रांसपोर्ट मीन्स के लिए हम किस किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की हेल्प से हम इसको फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई returned car. Second one, I went Jaipur bus. He made his journey on Chandra Travels Chandra Travels bus. फिल प्रेपोजिशन आंसर्स पहले आ चुके हैं मेरे सेंटेंस लिखने से भी। वेरी गुड। फर्स्ट में बाय आप यूज कर रहे हो, सेकंड में भी बाय यूज कर रहे हो, थर्ड में ऑन यूज कर रहे हो। आई रिटर्न्ड, तो इसमें फर्स्ट में हम पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। टू शो पर्सनल व्हीकल वी शुड यूज नॉट बाय इन। आई रिटर्न इन अ कार। I went Jaipur. In second sentence, I went Jaipur. Second में हम यूज करते हैं I went Jaipur by bus. यहाँ पे पर्टिकुलर किसी बस का नेम नहीं है। In third, he made his journey on a Chandra Travels. तो यहाँ पे अपन को preposition लगाने की जरूरत नहीं है। He made his journey on Chandra Travels bus. He made his journey. So to show such type of the use, we use on. दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। कोई भी पब्लिक व्हीकल्स है, सार्वजनिक यातायात के जो साधन है, उनको शो करने के लिए यदि हम जस्ट कोई पर्टिकुलर व्हीकल का नेम नहीं दे रहे, उसको सिंपल एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज कर रहे हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, तब हम यूज करते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर। सेकेंड वन, यदि हम बस, ट्रेन, शिप, प्लेन, एनिमल, बैग और फुट इनको शो करना चाहते हैं, और बस, ट्रेन में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, ऑन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, तो वहां पे अपन किसका यूज करते हैं? ऑन का। और प्राइवेट व्हीकल्स जितने भी हैं, इसमें बैठने की कंडीशन भी इनकी रहती है, कार, जीप, वैन, लॉरी, एम्बुलेंस और टैक्सी। यदि हमारी जर्नी इससे रहती है, पर्सनल व्हीकल से रहती है, देन वी यूज इन, उसमें हम इन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर चेयर, चेयर के लिए हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ही इज सिटिंग इन अ चेयर और ऑन अ चेयर। इन दोनों में से क्या रहेगा? ही इज सिटिंग इन अ चेयर और ऑन अ चेयर। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। इफ द चेयर इज विद हैंडल्स, आर्म रेस्ट हैंडल्स यदि चेयर के हैं, एट दैट टाइम वी विल यूज इन। ही इज सिटिंग इन अ कंफर्टेबल चेयर विद हैंड रेस्ट्स, and he is sitting on a plain chair without handles, without foot hand rests, at that time we will use on. तो जो भी कंडीशन हमारे इनर पोजीशन को शो करती है, एट दैट टाइम वी यूज इन, उसके लिए हम इन का यूज करते हैं। तो ये है हमारे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए यूज। इसके बाद बहुत ही कॉमन सा एक यूज, बिल्कुल हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वो हम यूज करते हैं, डिफरेंस बिटवीन ओ एफ, ऑफ एंड फ्रॉम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
of and from. First of all, you look at these two sentences. आप इन दो sentences पे देखें and आप पहले fill कीजिए अपने previous knowledge के according difference between use of of and from. For example, this house is made bricks, and second one, butter is made milk. Look at these two sentences and try to fill correct preposition in these two sentences. आपके आंसर आए हैं, विकास पारिक का आंसर आया है of from, बिल्कुल करेक्ट है आंसर. इन फर्स्ट वी विल यूज of. कनीज फातिमा के भी रिप्लाई आए हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं आप. इसका डिफरेंस यदि अपन देखना चाहें, मेड of एंड फ्रॉम. तो ये जो फर्स्ट प्रेपोजिशन है, यदि अपने इसको डिफरेंस देखना चाहें ग्रामेटिकल लैंग्वेज के अंदर, ओ एफ अब प्रोनाउंसिएशन रहता है इसका. दिस इज यूज्ड इन possessive case. This shows possessive case, meaning of the possessive case. And from shows meaning of ablative case. Ablative case shows separation. सेपरेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एब्लेटिव केस का. एब्लेटिव केस किसे कहते हैं? पृथक होने का भाव, अलग होने का भाव, एब्लेटिव. पजेसिव केस शो करता है उसका संबंध किसी के साथ, जेनेटिव फॉर्म जिसे अपन बोलते हैं, जिसे अपन पजेसिव फॉर्म भी बोलते हैं. दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स. ये हाउस है इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स से बना है. ब्रिक्स आर सेम इन द फॉर्म. हाउस के अंदर परसेप्टिबल है, दिखाई दे रही है हमें ब्रिक्स. ब्रिक्स आर सॉलिड एंड हाउस इज आल्सो सॉलिड. बोथ फॉर्म्स आर सेम. वी यूज OF out. And to show, if you want to show the change in the form, फॉर्म के अंदर यदि कोई चेंज शो करना चाहते हैं, उससे अलग होके कुछ नया बनने का भाव शो करना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी यूज फ्रॉम. बटर इज मेड. बटर जो है वो बनाया जाता है किससे? मिल्क से. बटर और मिल्क दोनों की फॉर्म के अंदर चेंज है. स्वीट्स आर मेड मिल्क फ्रॉम मिल्क और ऑफ मिल्क. स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क आएगा या OF ऑफ मिल्क आएगा. तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? वेरी गुड, विकास का आंसर आ चुका है, फ्रॉम आएगा इसमें, क्योंकि स्वीट्स आर डिफरेंट इन फॉर्म. मिल्क इज लिक्विड इन फॉर्म और स्वीट्स मिल्क से बनी है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे. तो ये भी एक एब्लेटिव फोर्स को शो करता है. एब्लेटिव पृथक होने का भाव, अलग होने का भाव शो करता है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं. जो हमारे डेस्टिनेशन हैं उनको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? TO2 का यूज करते हैं. टू शो डेस्टिनेशन, हमारे जितने भी गंतव्य स्थान हैं उन वहां पे जाने की दर्शाने के लिए, वहां पे जाना शो करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? टू का. और यदि जिस स्थान को छोड़ के जाना है, जहां से अपन डिपार्ट हो रहे हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का. अलग होने का भाव है, दूरी शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई अराइव्ड हियर जयपुर. आई अराइव्ड हियर, मैं यहां पहुंचा. फ्रॉम जयपुर, जयपुर से, इट मीन जयपुर को अपन छोड़ के. बिल्कुल विकास का करेक्ट है आंसर आपका. और यदि मैं ये शो करना चाहता हूं कि आई
वेंट मार्केट, आई वेंट। अब इसके बाद अपन किसका यूज करते हैं, जहां पे अपन को जाना है उससे पहले किसका यूज करते हैं, टीओ टू का यूज करते हैं। तो ये हमेशा अलग होने का भाव शो करता है। फ्रॉम टू हमारा गंतव्य जो स्थान है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि समटाइम्स वी यूज ओ एफ आउ and sometime we use from with death। डेथ के साथ हम कई बार ओ एफ अब वर्ड का यूज करते हैं प्रेपोजिशन का, एंड समटाइम वी यूज फ्रॉम। यदि कोई डेथ डिसऑर्डर से होती है उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं, जैसे कि हंगर, स्टारवेशन, ओवर ईटिंग, over drinking, these are disorders। और यदि अपन कहते हैं of any illness, disease, इनको शो करना चाहते हैं डेथ का रीजन जो है, एट दैट टाइम वी यूज ओ एफ अब। तो अब यूज होता है जिसमें अपन ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग इनका यूज करते हैं, उसके लिए हम इलनेस, डिजीज, इसके साथ साथ इसमें हंगर और स्टार्वेशन, इसके साथ भी हम ओ एफ अब का यूज करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रहे। फ्रॉम किसके साथ यूज करते हैं, ओवर ईटिंग है, ओवर ड्रिंकिंग है, या हमारा कोई इस तरह का वाउंड है, कोई इस टाइप के डिसऑर्डर के लिए, फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग है, फूड पॉइजनिंग के लिए इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम का। इफ डेथ, यदि जो डाई वर्ब है उसके साथ यदि कोई इलनेस शो करना चाहते हैं, डिजीज शो करना चाहते हैं, या हम हंगर और स्टारवेशन शो करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं इन चारों के लिए, ओ एफ अब का यूज करते हैं। यदि कोई डिसऑर्डर है जैसे कि ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग और कोई वाउंड है, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम का। वैसे WOND इसकी प्रोनाउंसिएशन भी वुंड रहती है, एज ए नाउन, एज ए वर्ब इसको अपन बोलते हैं वाउंड। तो वैसे यहाँ पे ज्यादा एज ए नाउन आएगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी वुंड रहेगी। तो इसको हम फॉर एग्जांपल जैसे इसको अपन सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं, तो आप फिल कीजिए इसमें प्रेपोजिशन करेक्ट जो है। फर्स्ट सेंटेंस, ही और इसी में यदि अपन ये लिखें ओवर ईटिंग, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। फर्स्ट में हम पर्टिकुलर डिजीज की बात कर रहे हैं, वेरी गुड, विकास की बहुत जल्दी आंसर आ रही है, बिल्कुल करेक्ट हैं आप। ही डाइड ऑफ कैंसर एंड ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग इज अ डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर्स के लिए ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। और इलनेस कोई डिजीज का नेम है, हंगर, स्टार्वेशन, इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, ओ एफ ऑफ का। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं यूज ऑफ अगेंस्ट। अगेंस्ट का क्या यूज होता है, कई बार हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन का वही यूज करते हैं जो यूज हम हिंदी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, उसी को हम ट्रांसलेट करते हैं, और उसको जब हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश का वर्ड लगाते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसलिए हमें अगेंस्ट का यूज कहाँ करना चाहिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो अगेंस्ट का यूज है, दैट शोज
contravention. To show meaning of contravention of, contravention of का मतलब हुआ के विरुद्ध. To show this meaning we use against. For example, हम हिंदी में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि उसने एक लैडर, एक सीढ़ी है वो दीवार पर लगाई. और यदि हम इसका मीनिंग इंग्लिश में लेते हैं, he put a ladder on a wall. Not correct. We should use he put a ladder wall. उसने दीवार पे सीढ़ी लगाई. तो हम इसको यदि बिल्कुल अगेंस्ट आएगा, सही आपका आंसर. तो दीवार के विरुद्ध हमारी जो वो सीढ़ी है लगाई गई है. दीवार के ऊपर तो जो हम सीढ़ी रखने का मतलब है कि इफ दिस वन इज वॉल, यदि ये वॉल है नीचे तक, तो हमने यदि यहाँ पे इस तरह से लेडर को पुट किया है दीवार के ऊपर, तो वो होगा ऑन वॉल. और यदि अपन यहाँ पे नीचे से ऊपर जाने के लिए जो लेडर पुट कर रहे हैं, टू शो दिस सेंस वी शैल यूज अगेंस्ट. We should fight against terrorism. We should fight against terrorism. हमें टेररिज्म के विरुद्ध लड़ना चाहिए. वहां भी हम यूज करते हैं अगेंस्ट फॉर्म का. और इसके बाद एक चीज मैं आपको और रिपीट करना चाहूंगा. अभी हमने एक यूज पढ़ा था टू का. टू बहुत ही कॉमन प्रेपोजिशन है इंग्लिश के अंदर. टू का यूज कोई भी इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब जो हैं उनके साथ यदि हम ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? टू का. किसके साथ? वर्ब के साथ. वर्ब के साथ हम टू का यूज करके ऑब्जेक्ट पुट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से he said to me. He said to me. It mean he. Said verb है वो कौन सी है? Intransitive verb है. तो इसलिए हमें कुछ intransitive verbs का ध्यान रखना पड़ेगा. जो भी intransitive verb है, यदि उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? टू का. और ये बात हम अक्सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ते हैं. जब हम इस से की फॉर्म को टेल की फॉर्म में अंदर चेंज कर देते हैं, जैसे ही टोल्ड मी, तब हम वहां पे बोलते हैं कि इस सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में. जबकि हम बिल्कुल यदि बेसिकली इसको ग्रामेटिकल फॉर्म में समझना चाहें तो से यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब थी, सो वी विल यूज टू. तो हम यहाँ पे टू का यूज कर रहे थे. और यहाँ पे टेल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, सहकर्मक क्रिया जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो उसके साथ हम कभी भी टू का यूज नहीं करते. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स आप ध्यान रख सकते हैं जिसमें अपने को टू का यूज साथ में करना है. तो जिसमें सिंपल जो से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, प्रे, डिस्क्राइब, तो इनके साथ हम टू का यूज करते हैं. और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनके साथ हम नहीं करते. फॉर एग्जांपल, एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, थैंक, वेलकम, वार्न, फॉरबिड, ऑर्डर, रिमाइंड, कंग्रेचुलेट एंड कॉम्प्लीमेंट. ये वर्ब्स आप जो स्टडी मटेरियल टैब है वहां पे नोट्स अपडेट कर दिए हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड, वहां से आप ले सकते हैं इसके आंसर. और कुछ इंग्लिश की ऐसी वर्ब्स है, वो भी कंप्लीट वर्ब आप स्टडी मटेरियल टैब से जैसे ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको कंप्लीट वो वर्ब्स मिल जाएंगी. कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसके अंदर प्रेपोजिशन की फोर्स होती है, उनके साथ हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते. तो उसमें भी हम फॉर एग्जांपल हम बहुत ही कॉमन वर्ड यूज करते हैं डिस्कस.
विचार विमर्श करना। वी शैल डिस्कस नाउन, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमें, वी शैल डिस्कस अबाउट नाउन, नाउन के बारे में, वी शैल डिस्कस नाउन, क्योंकि ये जो डिस्कस वर्ब है, इस डिस्कस वर्ब के अंदर ही प्रपोजिशन का सेंस है, इसके साथ हम दूसरे प्रपोजिशन का यूज कभी भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत सी कॉमन एरर आई हुई है एग्जाम में। एंटर, ही एंटर्ड इनटू हॉल, रॉन्ग है। ही एंटर्ड हॉल, उसने हॉल में प्रवेश किया। एंटर जो वर्ब है उसके अंदर ही इनटू का सेंस है, तो वहां पे हम एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते। इसके साथ में ऑर्डर जो वर्ब है, ही ऑर्डर्ड 3 cups of tea, he ordered, तो 3 cups of tea, he ordered 3 cups of tea नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर जो वर्ब है इसके अंदर ही प्रेपोजिशन का कंसेप्ट रहता है, तो इसके साथ भी हम अदर प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। ये कॉमन कौन सी वर्ब्स हैं? ये जो वर्ब्स हैं मुख्यतः ये आपको इन्वेस्टिगेट, ऑर्डर, डिस्कस, रिजेंबल, रिडिक्यूल, कुछ इंपॉर्टेंट अदर वर्ब्स भी हैं। आप स्टडी मटेरियल टैब से मेरे नोट्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से ये मिल जाएंगे। तो लास्ट हम एक और डिफरेंस इसमें देखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो एक डिफरेंस अपन इसमें देखते हैं, बिसाइड एंड एक्सेप्ट। डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट। बिसाइड्स जो मीनिंग है अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स विदाउट इंक्लूडिंग, इसको इंक्लूड न करते हुए, विदाउट इंक्लूडिंग एक्सेप्ट का मीनिंग रहेगा बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। यदि हम उसको जोड़ने के अतिरिक्त कहना चाहते हैं वहां पे हम यूज करते हैं बिसाइड्स, और यदि हम मीनिंग देना चाहते हैं उसको न शामिल करने का तो हम यूज करना चाहते हैं एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, I can speak Hindi and English. Second one, I like all student Mohan. In first sentence, अब फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास आंसर भी आए हैं। वेरी गुड विकास, बहुत ही एक्टिव, सबसे पहले आंसर आ रहे हैं इनके। बिसाइड्स, बिल्कुल सही है आंसर इसका। बिसाइड्स, बिसाइड्स उर्दू आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। उर्दू के अतिरिक्त आई लाइक ऑल स्टूडेंट्स, मैं सब स्टूडेंट्स को लाइक करता हूं, एक्सेप्ट मोहन, एक्सेप्ट मोहन के अलावा, मोहन के छोड़ के मोहन को, बाकी मैं सब विद्यार्थियों को लाइक करता हूं। नॉट इंक्लूडिंग का मीनिंग देता है एक्सेप्ट। इसमें भी कुछ वर्ड हैं जैसे कि EXCEPT, एक्सेप्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, होप, किसी से एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा करना। एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, और ये भी ध्यान रखें जो भी इंग्लिश के वर्ड EX से शुरू होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन भी इक से रहता है मोस्टली। एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट, एग्जाम नॉट एग्जाम, एग्जाम वर्ड नहीं होता, एग्जाम। एक्सपीरियंस नॉट एक्सपीरियंस। तो इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। लास्ट हम एक डिफरेंस और कर लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ, और एक वर्ड होता है डेस्पाइट।
इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डेस्पाइट। तो जो डेस्पाइट है वो बिना प्रेपोजिशन ऑफ के यूज होता है, इन स्पाइट ऑफ ये ऑफ के साथ यूज होता है। तो इसका जैसे अपन एग्जांपल से करें, हार्ड वर्क ही फेल्ड, हार्ड वर्क ही फेल्ड। और सेकंड में यदि हम यूज करना चाहें तो इसमें हम यूज कर सकते हैं जैसे being rich he is not satisfied, in spite of के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद, डेस्पाइट, लेकिन डेस्पाइट बिना प्रेपोजिशन के यूज होता है। तो सेकंड वन में बिल्कुल सही, बिल्कुल सेकंड वन में डेस्पाइट आएगा, फर्स्ट में इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क करने के बावजूद ही वो फेल हो गया। और एक अपन ये लिखें डेस्पाइट, सेकंड में आएगा डेस्पाइट बीइंग रिच, तो रिच धनवान होने के बावजूद भी ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह सेटिस्फाइड नहीं है। बिल्कुल कॉमन यूज जो प्रेपोजिशंस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं हमारे आज के लेक्चर में और एक पीछे लेक्चर के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन क्लास में, ऑलमोस्ट उसको मुख्यतः जो आज अपने कंप्लीट करने की ओर हैं। जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स के बाद जस्ट 5 और 10 मिनट की और क्लास आपकी लेंगे छोटी सी, जिसमें हम वी विल डिस्कस ओनली मीनिंग ऑफ द इंटरजेक्शन एंड यूज ऑफ इंटरजेक्शन। ओनली 10 और 5 मिनट की क्लास रहेगी, आप रिज्वाइन कर सकते हैं जस्ट आफ्टर 10 मिनट। और उसके साथ आज ये प्रेपोजिशन है, ये आप सीख सकते हैं इंग्लिश की रीडिंग के साथ साथ। जैसे जैसे आपकी रीडिंग एनहेंस होगी, आपके बार बार इस टाइप की यूज बढ़ते रहेंगे और आप इसका करेक्ट यूज सीख जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे विदाउट नोइंग एनी रूल एंड रेगुलेशन। बिल्कुल सिंपल जो प्रेपोजिशन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। वोकैबुलरी के साथ भी कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी रहते हैं कि वहां पे फिक्स ही रहता है प्रेपोजिशन, वो भी हमें याद रहेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी रीडिंग एनरिच होगी। इसलिए आप रीडिंग जरूर करें इंग्लिश की डेली, एक्सरसाइज जरूर करें, नोट्स डाउनलोड करें, एक्सरसाइज करें, बुक से जुड़े रहें जो भी आपके पास में अवेलेबल हैं। यू विल डेफिनेटली लर्न, आप वास्तव में सीखेंगे। और यदि हम जस्ट इसको एक एज ए फॉर्मेलिटी इसलिए पढ़ रहे हैं कि मेरे एग्जाम सिलेबस में है, तो दिस वन इज नॉट फेयर मेथड, ये बिल्कुल फेयर मेथड नहीं है। मिलते हैं 10 मिनट की ब्रेक के बाद जस्ट इंटरजेक्शन के लिए, और उसके बाद हम कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फोनेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप सभी अलर्ट रहें, आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें, इस ऐप से जुड़े रहें। मिलते हैं इसके बाद, गुड बाय।